नमस्कार सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं एक और बार. At the beginning of 2025, Guruji shared a guiding message that from this year onwards, MBTF would begin taking up social impact initiatives that uplift and empower larger sections of society. Now, these projects will be, yes, it is something beautiful. These projects will be designed to create meaningful change, especially by generating livelihood and supporting self-reliant communities. Now, with this step, MBTF expands its vision, becoming not only a spiritual charitable organization, but also an organization that is rooted in service, a social organization also. By nurturing projects that are both impactful and sustainable, MBTF aims to ensure that the work of upliftment continues without interruption. So, like every year, it gives us at Tadekam immense satisfaction to present before all of you the dedicated work being done by our committed team, chosen and guided by Guruji. So, let's have a look. Promoting culture and economic growth in Kuppam through tourism. As per Guruji's guidance, a new vision for community upliftment through cultural and social projects is being initiated in the Kuppam constituency. With a strong focus on the livelihood creation, heritage preservation, and women and youth empowerment, MBTF will serve as the implementing agency for this work in Kuppam. The goal is to create sustainable community development models where the economic benefits directly reach local families, especially tribal communities, women, and the youth. Any income generated through these initiatives will be fully reinvested into MBTF's charitable and social service efforts, ensuring they continue uninterrupted and expand over time. Kuppam, the cultural crossroads of South India. Kuppam, the southernmost tip of Andhra Pradesh, is a unique confluence of cultures. It lies at the tri-junction of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and Karnataka, making it a melting pot of Dravidian traditions, languages, and customs. The region is home to the Dravidian University, established by the late Honorable Chief Minister Sri N.T. Rama Rao, with a vision to promote and preserve the rich tapestry of South Indian heritage. From ancient temples and folk art to traditional crafts, music, and local festivals, the region has immense untapped potential for cultural tourism. Highlighting these unique cultural identities not only fosters pride among local communities, but also creates economic opportunities through guided tours, homestays, artisan markets, ecotourism, and skill-based employment. Guruji's vision, from Kuppam to broader social transformation. Under Guruji's direction, this initiative in Kuppam is not just about place-based development. It is envisioned as a replicable model of socially conscious service that blends spirituality, culture, and practical livelihood solutions. Once successfully implemented, similar models can be introduced in other regions across Andhra Pradesh and Maharashtra. Our dedicated team, consisting of Sanjay Vishwasrao, Sudha Yarlagadda, and Madhavi Babu, successfully presented the strategies to the Honorable Chief Minister Sri Chandrababu Naidu. Tadekam is initiating its social and cultural development work in the Kuppam region, starting from the historically significant village of Kangundi, known for its heritage dating back to pre-Mahabharata times. Under the theme
Climb and culture, bouldering will be used as a medium to promote responsible tourism while preserving the region's cultural identity. Along this, Tadekam will curate indigenous cultural events and promote locally made products such as honey and soap nut based shampoo under the Made in Kuppam initiative, creating sustainable livelihoods and community pride. Tadekam is proud to support and sponsor the incredibly talented 14-year-old artistic skater from Andhra Pradesh who has brought immense pride to the nation. Representing India at international championships, she has won multiple medals, including gold, showcasing excellence and her dedication. In recognition of her outstanding achievements in sports, she was honored with the prestigious Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar 2025. Tadekam congratulates her and remains committed to nurturing young talent across India. I want to achieve more medals in my skating career. Next Asian Championship, World Championship, I want to represent India and make my country proud. As a part of Swachh Andhra, Swachh Kakinada Cleanliness Drive, Tadekam contributed 1 lakh towards the beach cleanup initiative under the guidance of Kakinada MLA Sri Pantam Nanaji. This gesture reflects Tadekam's ongoing commitment to environmental sustainability. Seva at Pune Kalpataru Sahanivas Foundation. With the blessings of Babaji Maharaj, Guruji Naushir, MBTF volunteers lovingly offer selfless seva to the elderly residents of Kalpataru Sahanivas Foundation every fortnight. These visits are filled with warmth and joy as volunteers engage the seniors through a variety of uplifting activities such as bhajan sessions, musical games, festival-themed celebrations, dance, and meaningful interactions. These moments not only bring smiles and a refreshing change to the seniors' routine, but also foster deep heartfelt connections. The elders eagerly look forward to our visits and participate with joy and enthusiasm. In return, we too are enriched, receiving love, wisdom, and life lessons from their experiences. Dev Mata, Orphanage in Nashik. This is one of the first charitable initiatives of Guruji as per Babaji's instruction. Guruji adopted this orphanage and the work of supporting and providing for the children in the home is continuing. Participated in Global Spiritual Mahotsav. Team Tadekam represented MBTF in the Global Spiritual Mahotsav organized by the Ministry of Culture, GOI, in Hyderabad last year. This conference is first of its kind, intended as a grand spiritual celebration to explore the evolution of consciousness and its impact on social harmony and sustainable development, while creating a new trajectory for our global existence based on Swami Vivekananda's vision of religious tolerance. Tadekam, in collaboration with Aleep, has set up a jute bag training center in Rajolu, Andhra Pradesh, to empower local women with skills and support for livelihood and business development. Over the past 11 years, these efforts span skill development, revival of weaver societies, scholarship programs, elderly care, support for the differently abled, healthcare for the needy, water pipeline installations in Macharla, temple restoration. Through all these initiatives, Tadekam continues to serve silently and tirelessly, guided by Guruji's principle, Har Kam Nishkam, selfless service in every deed. Jai Shri Gurudev. A warm welcome from Mahavatar Babaji Tadekam Foundation. Our foundation is very unique in the sense we believe in Tad Ekam, meaning all are one. All gurus are one, and that's why we have no differentiation between any guru and Swamiji. For us, they are all representation of divinity. And we believe whatever comes our way is through their grace and blessings. उनके आशीर्वाद से ही जो कुछ भी मिलना है वो हमें मिल जाता है. तो तद एकम का अर्थ है सभी एक है, सभी गुरुजन एक है और हमें सभी से सीखने के लिए तत्पर होना चाहिए. ये गुरुजी के ही आशीर्वाद है जो स्वामी जी जैसे महान हिमालयन संत आज हमें मार्गदर्शन के लिए हमारे पास आए हुए हैं. बाबा जी की जो एक लीला है वो समझने के लिए ना थोड़ा हमें बैकवर्ड जाना पड़ता है.
जब हम उनके मार्ग पर चलते हैं तो कभी कभी इतनी आश्चर्यकारक चीज़ें होती है कि हमें भी थोड़ा ना एक मुस्कुराना पड़ता है कि बाबा जी आप कितने अलग अलग तरीके से ये सब घटनाएं घटित करवा रहे हो। ऐसी एक घटना मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट में काम करने के आदेश आए और हम लोग वहाँ पे पहुँचे, हमेशा हमारा एक बैनर लगता है जहाँ पे गुरुजी और बाबा जी का फ़ोटो रहता है। हमारी पहली मुलाकात श्री पंतम वेंकटेश्वर राव, ये उनका नाम है लेकिन प्यार से सभी उन्हें पंतम नाना जी बोलते हैं। उन्होंने जब बाबा जी का फ़ोटो देखा तो उन्होंने बोला कि ये ऐसा ही फ़ोटो मेरे पास भी है और मैं हमेशा इसे मेरे साथ रखता हूँ। अब जो दो बाबा जी को प्यार करने वाले हैं वो एक साथ उन्होंने जोड़ दिए क्योंकि कुछ काम होना था, और इस प्रकार से जहाँ पे हमें मालूम नहीं है वहाँ पे हमारे जो मित्र है वो नाना जी के रूप में हमें प्राप्त हुए और उनके द्वारा बहुत कार्य हम वहाँ पे अच्छे से कर पाए। तो थोड़ा सा परिचय मैं नाना जी का आपको देना चाहूँगी। इनको जैसे मैंने कहा आदर के साथ और प्रेम से उन्हें पंतम नाना जी बुलाते हैं। ही इज़ एन इंडियन पॉलिटिशियन फ्रॉम आंध्र प्रदेश. He is a member of Janasena Party and he has been elected as the member of the Legislative Assembly representing the Kakinada Rural Assembly constituency in 2024. In a miraculous turn of event, Pantham Nanaji came into the contact with us, like I was telling you, unknowingly carrying a photograph of Mahatar Babaji in his wallet. This divine coincidence marked the beginning of a deeply spiritual and service-oriented journey. जब हम आध्यात्म में होते हैं तो सेवा अलग नहीं है, आध्यात्म और सेवा एक साथ ही आगे बढ़ते हैं. He expressed his heartfelt commitment to support the mission of Tadekam Foundation. Under his leadership, several impactful initiatives were undertaken, जो आप अपने देखे हैं कि जैसे कोई भी बाबा जी का कार्य अगर काकीनाडा में करना है तो हमें पंतम नाना जी से पूरा सपोर्ट, मार्गदर्शन और गाइडेंस वहाँ से मिलता है. नाना जी, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज आप सपरिवार यहाँ पे आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है. ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो पंतम नाना जी के गाइडेंस में और हमारे ना कोलैबोरेशन में आप देख सकते हैं. प्रोवाइडेड टेलरिंग training to nearly 1,500 women, empowering them with the skills of self-reliance. ये उन्होंने सर्टिफिकेट बांटे गए थे. Awarded educational scholarships to deserving students across rural Andhra Pradesh. Worked extensively for the fishermen and farmers in Repuru and Harborpeta. Provided driving training to youth, again for self-employment. Organized groceries distribution to needy and medical camps. So मेरी ये विनती है कि ये जो बाबा जी ने हमें एक साथ लाया है ये ऐसे ही आगे भी चलता रहे हमारा काम, और जितनी भी देश की सेवा हो सके, लोगों की सेवा हो सके, उतनी बाबा जी महाराज हम लोगों से करवाए. थैंक यू सो मच. तदेकम के जो सारे इनिशिएटिव है जो सिर्फ आध्यात्म से ही नहीं, सेवा से भी जुड़े हुए हैं. जब हम किसी भी आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हैं, जब हम किसी आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हैं, हमेशा एक ही व्यक्ति का मार्गदर्शन हमें मिलता रहे ये ज़रूरी नहीं है. कभी कभी ईश्वर की कृपा अगर हम पे रहे तो अनेक महात्मा, अनेक संतों के द्वारा हमें मार्गदर्शन उपलब्ध हो जाता है. क्या हम इसे स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं? तो कभी कभी मन में कई शंकाएं उत्पन्न होती है कि इतना सारा जो ये ज्ञान आ रहा है तो इसमें से किसका मार्ग मैं चुनूं या किस पाथ को मैं फॉलो करूं. इसके लिए बाबा जी और गुरु जी महाराज ने यहाँ पे एक छोटा सा हमें
इजी टू एक्सप्लेन ऐसे ये फिगर बताइए। तो यहाँ से हम चलते हैं, जो बीच का जो स्क्वायर है, ह्यूमन बॉडी मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स। जब हम अपने आप को देखते हैं, हम सिर्फ शरीर को देखते हैं, और जब हम शरीर को देखते हैं तो उसके साथ साथ कितने सारे जो चीज़ें हैं वो हमें नज़र नहीं आती है, जो है हमारा श्वास। हम अपने श्वास को अगर देखें तो श्वास के साथ हम प्राणवायु ग्रहण करते हैं। सिर्फ शरीर का अगर हम देखें तो हम उसे अन्न देके या कुछ एक्सरसाइज करके हम उसे स्वस्थ रख सकते हैं। श्वास का क्या करेंगे? तो श्वास के लिए भी प्राणायाम दिया गया है। क्रिया योग और अंतर्यात्रा में हमें श्वास के साथ अपने आप को जुड़ने का और उसे और समझने का हमें मौका मिलता है। तो हमारा जो फोकस है वो सिर्फ शरीर पे ना रहे, बाकी के जो हमारे व्यक्तिमत्व के अंग है वो भी हमें समझने चाहिए, और हर एक अंग का पोषण हो, हर एक अंग का विकास हो, ये भी हमें देखना है। जैसे शरीर के लिए हम अच्छा खाना खाना, योगासन करना, और अगर ज़रूरत पड़े तो औषधियों का प्रयोग करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। श्वास को स्वस्थ और अच्छा रखने के लिए हम अपने प्राणायाम जो हमने सीखे हैं, क्रिया योग में भी सीखे हैं और अंतर्यात्रा में भी सीखे हैं। तीसरा जो आता है वो है आत्मा का जो एक भाग है जिसे हम जान नहीं पाते या जिससे हम जुड़ नहीं पाते हैं। वहाँ पे जो हमारे भावनाएं हैं या हमने आज तक जो भी कुछ अनुभव लिए हैं वो एक स्टोर हाउस जैसा हो जाता है। आत्मा का पोषण किससे होता है या आत्मा के लेवल तक कौन सी साधना लेके जा सकती है, इसका विवरण यहाँ पे श्री बाबा जी महाराज ने दिया है। कोई भी आध्यात्मिक पाथ जो है वो आत्मा की लेवल तक लेके जाता है, वहाँ तक की शुद्धि या वहाँ तक का स्वास्थ्य हमें प्राप्त हो सकता है। जैसे क्रिया योग है, अंतर्यात्रा है, कोई भी मंत्र का जप है, उसका हमारे सारे लेवल्स पे इफ़ेक्ट होता है। उसका शरीर पे भी होता है, उसका श्वास पे भी होता है, और उसका हमारे आत्मा पे भी प्रभाव पड़ता है। जब आप एक लय में कोई भी मंत्र बोलते हैं, आप आपका श्वास देखिए, वो भी एक रेगुलेट हो जाता है, वो भी एक नियमित हो जाता है। इसके बाद रेकी का भी बहुत लोग प्रयोग करते हैं खुद को मानसिक, भावनिक और आत्मा के लेवल पे स्वस्थ रखने के लिए। खेचरी मुद्रा, शांभवी मुद्रा, ये जो हमारे संतों, महात्माओं, ऋषि मुनियों का ज्ञान है वो हमें अपने गुरुओं से प्राप्त हुआ है। इतना ज्ञान और इतना पावरफुल टेक्निक है, इसका सही उपयोग करने से हम सच में आत्मा के लेवल तक हम हीलिंग भी कर पाएंगे, हम प्रगति भी कर पाएंगे। कोई भी आध्यात्मिक पाठ सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं होता है, वो हमारी पूरी तरह से देखभाल करता है। हर लेवल पे हम स्वास्थ्य पा सकते हैं। ऐसा मानते हैं कि अंतर्यात्रा, स्वामी जी ने हमें बताया कि अंतर्यात्रा अगर आप निष्ठा से करें, इसमें हर रोग निवारण करने की शक्ति है। इतनी ऊर्जा आपके अंदर भर जाएगी कि आपको थकान महसूस नहीं होगी, हर प्रकार के व्याधि का नाश हो सकता है। उसी प्रकार हमने क्रिया योग में भी देखा है कि कैसे श्वास का प्रयोग करके हम दिव्य चैतन्य से जुड़ के हम अपने अंदर की किसी भी व्याधि को ठीक कर सकते हैं। तो पाठ कोई भी हो, उनका जो असर है, उनका जो इफ़ेक्ट है वो एक समान ही होता है। शांभवी मुद्रा और खेचरी मुद्रा दोनों का ही अभ्यास करने से हम आत्मा के लेवल तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा टेम्पल विजिट। हमारे भारत की संस्कृति इतनी महान है। जो भी मंदिर निर्माण करवाए गए थे वो इतने शास्त्र के ऊपर आधारित थे, इतने साइंस के ऊपर आधारित थे कि आज भी लोग अचंभित होते हैं कि मंदिर निर्माण में कितना साइंस यूज़ किया गया है। उस ज़माने में जब हम लोग समझते थे कि उन लोगों को पढ़ना लिखना भी आता नहीं था। ऐसी बात नहीं है। इसीलिए हमारे देश के प्रति हमारा स्वाभिमान बढ़ना ज़रूरी है। विदेशी शासन के दौरान हमारे गलत ज्ञान को हम तक पहुंचाया गया, इसका इतना बुरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा कि हम अपनी संस्कृति को ही दुत्कारने लगे, उसे ही कम मानने लगे। और अब समय आया है कि हम अपनी संस्कृति को जानें। अभी जो एक आपके सामने आविष्कार हुआ था राधा कृष्ण का, स्वामी जी बोलते हैं कृष्ण है, राम है, ये कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं, ये हमारा इतिहास है जिसका हमें अभिमान होना चाहिए कि इतने महान व्यक्तिमत्व हमारे भूमि में जन्म लिए हैं।
जिन ऋषि मुनियों को 27 युगों का ज्ञान है, असंख्य मनवंतरों का ज्ञान है, वो अज्ञान कैसे हो सकता है? ये सब बस इंग्लिश नहीं जानते हैं, इसके लिए इतना हमें नीचा दिखाना ये गलत बात है। हमारी संस्कृति को लाखों सालों की परंपरा है। हमारे घरों में अपनी संस्कृति को अभिमान से हमें उच्चार करना चाहिए, ताकि अगली जो जनरेशन है वो भी देशभक्ति लेके जन्मे और अपना स्वाभिमान हमें वापस प्राप्त करना है। तो यहाँ पे टेम्पल विजिट्स, हर धर्म के आप लोग देखो, वो ज़रूर उनके प्रार्थना स्थलों पे जाते हैं। भारतीय लोग, हिंदू जो हम मानते कि हिंदुत्व यहाँ पे ज़्यादा है, हम हफ्ते में एक बार भी जाते हैं? ये सोचने की बात है। अगर आपको अपनी संस्कृति का अभिमान है तो उसका रक्षण करना, उसका संवर्धन करना और उसका उपयोग करना, चाहे आप जिस धर्म से हो, चाहे आप जिस संस्कृति से हो, आपकी संस्कृति को हमें रक्षा करना, क्योंकि भारत एक मिसाल है। यहाँ पे हर संस्कृति, हर धर्म अपना अपना इतने सालों से अच्छे से लेके यहाँ पे प्रस्थापित कर पाया है। बाकी सभी देशों में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो हमें अपने देश के ऊपर अभिमान होना चाहिए। और सेक्युलरिज्म एक तरफ है, लेकिन अपनी संस्कृति को खो देना दूसरी बात है। तो टेम्पल विजिट यहाँ पे तदेकम के लोगों को खास करके गुरुजी का ये संदेश है कि सभी लोग अलग अलग प्रार्थना स्थलों में जाते हैं। तदेकम का प्रार्थना स्थल कहाँ है? कितने लोग आते हैं वहाँ पे? कितने लोग प्रेम से वहाँ पे ध्यान करने आते हैं, जहाँ हमारे गुरुओं ने इतने महान शक्तियों को स्थापित किया है। गुरुजी ने स्वयं साईं बाबा, शिवजी, माता रानी का वहाँ पे स्थापन किया है, और अब स्वामी जी के मार्गदर्शन में दत्तात्रेय भगवान भी स्थापित हुए हैं। ऐसे दिव्य मंदिर के आप महीने में कितनी बार जाके दर्शन करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसका महत्व हमें मालूम नहीं है। अब इस विषय में गुरुजी ने ही हमें महत्व वापस से दिलवाया है कि ऐसे स्थानों पे जाके हमें ही फायदा होगा। ऐसी ऊर्जा जहाँ पे मंत्र जाप होता है, जहाँ पे आध्यात्मिक वातावरण है, वो एक मंदिर से कम नहीं होता है। तो आज के बाद पूना, मुंबई, हैदराबाद, जहाँ पे भी ये ध्यान मंदिर स्थापन किए हैं, वहाँ पे सभी लोगों को दर्शन के लिए, ध्यान के लिए ये जाना एक नियम बनाना पड़ेगा। और हम यहीं पे अपने डिसिप्लिन में ही कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारा धर्म डिमांड ही नहीं करता कुछ। बोलना है तो बोलो, नहीं बोलना है तो भी हमारा ईश्वर बहुत ही क्षमाशील है, मैं बोलती हूँ। वो डरा के नहीं रखता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बिगड़े बच्चे बन जाए। तो स्वामी जी ने आज सुबह इतना सटीक ज्ञान दिया है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। उन्होंने बोला कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए 3 कृपा होनी चाहिए। अगर आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है तो आपके मन में आध्यात्म का विचार जागृत होगा। अगर आपके मन में वो विचार है ना, आपके ऊपर ईश्वर कृपा है, उसी ईश्वर की कृपा से आपको वो गुरु तक पहुंचाएगा। आप सभी गुरु तक पहुंच भी गए हैं, यानी बिल्कुल ही ईश्वर की कृपा है। गुरु के पास पहुंच के गुरु की कृपा कैसे अर्जित की जाए? बहुत लोगों ने ये प्रश्न गुरु जी को भी पूछा था, स्वामी जी ने भी आज उसका उत्तर दिया है। गुरु की कृपा आप किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? आपकी निष्ठा, आपकी शरणागति, आपके विश्वास को देख के गुरु की कृपा अपने आप से आएगी। उसके लिए कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं होती है। उल्टा वो बोलते हैं कि स्वामी को पांव पकड़ पकड़ के नमस्कार करने से कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पदों को, यानी मेरे वचनों का पालन करो। जो उनके वचन का मन से, दिल से पालन करेगा, गुरु कृपा अपने आप से आएगी। ये 2 कृपा आप लोगों पे है। ये भी उन्होंने बताया, कहते तीसरी कृपा थोड़ी कम पड़ती है। मैंने सोचा, आप तीसरी कृपा कौन सी है स्वामी जी? कहते निज कृपा। मैंने कहा ये मैंने शब्द भी नहीं सुना, निज कृपा क्या होती है? निज कृपा, अपनी आप पे कृपा। स्वामी जी समझ नहीं आए, अपने आप पे कौन कैसे कृपा करेगा? कहते अपनी आप पे कृपा करना यानी डिसिप्लिन में रहना, अपनी साधना को कभी चूकने नहीं देना।
ये अपने आप पे कृपा है। ज्ञान सबको है, क्या करना है वो भी मालूम है, फिर भी आप अपने ऊपर कृपा करके वो ज्ञान का पालन नहीं करते हो। और मैंने सोचा हाँ, ये अपराध तो बहुत लोगों से हो रहा है स्वामी जी, सब कुछ मालूम है, तो आप निज कृपा हम अपने ऊपर कब करेंगे? ईश्वर की कृपा भरपूर है, गुरुओं की कृपा अपरंपार है, कम कहाँ पड़ता है, अपने आप पे ही कृपा। तो अपने आप पे कृपा कीजिए और अपना जितना लाइफ में जितना थोड़ा डिसिप्लिन से एक चीज़ को पकड़ के आप निरंतर वो प्रैक्टिस करेंगे, आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं आप पहुँच सकते हैं। तो ये डायग्राम इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत लोग, मैं एक डॉक्टर हूँ, बहुत लोग व्याधियों से ग्रस्त है, इसके लिए साधना नहीं कर पाते हैं, या सिर्फ शरीर के ऊपर ध्यान देते हैं, आगे के लेवल पे नहीं जाते हैं। मेरा उनसे एक निवेदन है कि आप आपके सारे कोशों को देखो, आप सिर्फ शरीर नहीं हो, आप आपके मन हो, आपके भावनाएं हो, आपके अनुभव हो, आपकी आत्मा भी आप हो। ये सारे लेयर्स को अगर आप ध्यान देके उनका पोषण करेंगे, आपकी आध्यात्मिक प्रगति सुलभ सरल हो जाएगी। तो उसमें ये जो सारे पॉइंट्स है, यहाँ पे आपकी प्रकृति के अनुसार, आपके आनंद के अनुसार आप कोई भी प्रैक्टिस ले सकते हो, उसको निज कृपा से निभाना है, निष्ठा से निभाना है। इतना भाग्य है कि ऐसे महान संत साधु गुरु हमारे द्वार पे मार्गदर्शन देने के लिए आते हैं। हम कहाँ गए थे, स्वयं गुरुजन आके दे रहे हैं। तो इसका हमें मान रख के उनके वचनों का जितना पालन हो सके वो करके हम उन्हें सार्थ अभिमान तो दे ही सकते हैं। और यहाँ पे एक और लेयर जो आप देख रहे हैं वो है आध्यात्मिक प्रगति में हमें कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये तो हमारे ओर से हम प्रयास कर रहे हैं। वो चीज़ें कौन सी है? गुरु के आशीर्वाद, कुंडलिनी शक्ति जो हमारे अंदर ही है, और बाहर की जो विश्वव्यापी आप ईश्वर की ऊर्जा बोलते हो, वो ये इन सभी को एकत्रित लाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। अंतरयात्रा हो, क्रिया योग हो, इससे हम अंदर की ईश्वर की शक्ति यानी कुंडलिनी से जुड़ते हैं। जब हम गुरु की भक्ति करते हैं, जब ईश्वर की भक्ति करते हैं, तब हम बाहर की ईश्वरी शक्ति से भी जुड़ जाते हैं, और इस प्रकार से हमारी साधना पूर्णत्व पे आती है। ये सारे पॉइंट्स एक साथ करने से आपको कुछ निश्चित और कॉन्क्रीट मिलेगा। तो ये आप इसको जैसे आपके मन में, आपके हृदय में उतार ले कि कहाँ कहाँ पे मैं कम पड़ रहा हूँ। अगर मुझे पूछे तो मेरी भी निज कृपा थोड़ी कम पड़ रही है स्वामी जी, क्षमा चाहती हूँ। और दूसरी चीज़ कम पड़ रही है वो है हमारा मंदिर, हमारा अपना मंदिर। वहाँ पे आपको महीने में कम से कम एक बार, एक्चुअली हफ्ते में एक बार जाना ज़रूरी है, लेकिन हम बहुत व्यस्त है, बहुत दूर है करके बहाने हैं हमारे, लेकिन महीने में तो एक बार हम कमिटमेंट दे सकते हैं और अपने इस गुरुजनों को हम अपने ऊपर गर्व का मौका दे। बस मेरी यही विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और है? ठीक है। हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे गुरुजन इतने हम पे प्रेम करते हैं, इतना हम पे उनका ज्ञान बरसाते कि कितने प्रोग्राम है। मुझे लगता है ये एक ऐसा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक फाउंडेशन है जहाँ पे हमें सोचना पड़ता है कि प्रैक्टिस आज कौन सा करे। इतना जैसे थाल सजा के गुरुजनों ने हमारे सामने लिया है, उसमें नए प्रोग्राम कौन से ऐड हुए हैं वो देखते हैं। स्पिरिचुअल रिट्रीट्स विथ रिस्पेक्टेड हिमालयन महात्मा संत स्वामी दत्तपादानंद जी। कितना भाग्य लगता है गुरु सान्निध्य में कोई प्रैक्टिस करने का। और हमारे यहाँ उल्टा ही होता है, लोग गुरुओं के आश्रम में जाके प्रैक्टिस करते हैं, इतना खर्चा करके हमारे गुरु हमारे पास आते हैं और फिर भी हम उनके योग्य हमको नहीं बना पाते, वो हमारा फेल्यूर है। इस रिट्रीट को अटेंड करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? अंतर यात्रा आप अच्छे से सिंसियरिटी से
40 दिन पूर्ण कीजिए, आगे की थोड़ी सी जो दीक्षा है स्वामी जी से वो लीजिए, आप स्थिर हो जाएंगे तो आप इस योग्य बनते हैं। ये भी विषय स्वामी जी मैं धन्य हूँ, मुझे पता नहीं था आप सुबह जो ज्ञान दे रहे थे वो अभी मुझे देना है या बोलना है ये आप ही की कृपा है। तो साधना बाद में आती है ये मुझे मालूम पड़ा। कहते जब मेरे पास लोग आते हैं वो कष्ट में होते हैं, वो दुख में होते हैं, वो समय नहीं है साधना का, वो समय नहीं है आध्यात्मिक प्रगति का। पहले उस कष्ट से बाहर निकलना ज़रूरी है। और देखो गुरुजी ने हमें रेकी दी है जान के कि वो कष्ट दूर करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जब वो कष्ट दूर होके हम स्थिर होंगे तब महात्मा लोग कुछ हमें दे पाएंगे, तब हमारा कुछ सीखना ज़रूरी होता है। तो या तो आप अंतरयात्रा सीखिए या क्रिया योग सीखिए, लेकिन अंतरयात्रा से आप सशरीर गुरु से आप जुड़ेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरु जी के आशीर्वाद तो हमारे साथ है ही। इसमें हम क्या सीखते हैं या क्या एंजॉय करते हैं? दिस स्पेशल रिट्रीट इज हेल्ड एट अ स्पिरिचुअली चार्ज्ड लोकेशन। ये अनदर एडवांटेज है। ऐसा स्थान जहाँ पे सिर्फ ध्यान करने के लिए लोग आते हैं सालों से, ऐसा स्थान अपने आप से पवित्र हो जाता है। डिज़ाइन टू सपोर्ट योर साधना इन द राइट एनवायरनमेंट। घर में कभी कभी बहुत डिस्टर्बेंस होता है, हम एकांत नहीं पाते हैं, कुछ ना कुछ अड़चनें आती रहती है, हमारी साधना हर दिन ऊपर नीचे होती है। यहाँ पे आप 4 दिन आराम से कटिंग ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, आप पूर्ण फोकस से आपकी साधना कर सकते हो। आपको कितना मंत्र जाप का आनंद लेना है लीजिए, आपको कितना ध्यान करना है कीजिए। स्वामी जी के सानिध्य में रह के आप नए नई बातें, नए नए ज्ञान को प्राप्त करेंगे। वो इट्स लाइक अ चेरी ऑन द टॉप। सो it also offers a rare opportunity to connect personally with Swamiji through one-to-one conversation about your spiritual progress. हमारी शंकाएं, आध्यात्म की जो योग्य शंकाएं हैं उनका निवारण करके हमें स्वामी और आगे ले जाने की तैयारी में है, बस हमारा प्रयास होना चाहिए। इस प्रकार से हमने कितना आनंद लिया है। वो हमें प्रकृति से जोड़ने के लिए यहाँ ऐसे स्थान पर खुद चल के लेके गए, इतना ऊपर तक ट्रैक करके कि नहीं जल के सानिध्य में या पहाड़ों के सानिध्य में या वृक्षों के सानिध्य में प्रकृति से जुड़ो। इस प्रकार से हमने एक आई थिंक 26 जनवरी था तो वहाँ पे हमने अपना देश प्रेम भी सेलिब्रेट किया स्वामी जी के सानिध्य में। दूसरा है जब आप अंतरयात्रा या स्पिरिचुअल रिट्रीट में थोड़े स्थिर हो जाते हो, स्वामी जी के सानिध्य में थोड़ा और अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हो, तब आता है मौन शिविर। हमने पहले कभी भी मौन रखा नहीं था। स्वामी जी ने बोला मौन सिर्फ ये नहीं है, मौन यहाँ पे भी होना चाहिए। जो घर में सुविधा नहीं है, क्योंकि घर में कोई उल्टा पुल्टा कर रहा है मन में, तो ये मौन नहीं है। मौन के लिए भी एक वातावरण चाहिए जहाँ पे आप किसी दूसरी चीज़ पे आप ध्यान करके अपना मन अपने विचारों भावनाओं से अलग करके असल का मौन, अंतरंग का मौन आप प्रैक्टिस करो। इसके लिए भी आपको प्रकृति में जाना पड़ेगा। और इसके लिए क्या आपको क्वालिफिकेशन तो नहीं बोल सकती, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन ऐसे आता नहीं है कि कोर्स करके टिक मार्क करके। वो योग्यता प्रैक्टिस के बाद वो स्वामी हमें हमारे को देख के ही बोलेंगे कि अभी रुको, अभी थोड़ा समय है। तो उस प्रकार अगर उनको लगा हम योग्य है तो वो ज़रूर हमें और आगे ले जाने की चेष्टा करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ज़्यादा डीपर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए कंप्लीट मौन जितना हो सके और प्रकृति में रहने की उससे शक्ति पाने की हम कोशिश करते हैं। इन हिज प्रेजेंस मेंटेनिंग मौन बिकेम नेचुरल विच वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हम लोगों को सच में इतना तनाव था कि हमने कभी नहीं किया है। और जब हम आध्यात्मिक मित्र मिलते हैं ना, चर और ज़्यादा हम खुश होते हैं ना, हम इतनी बातें करते हैं कि उसमें मौन रखना और मुश्किल हो सकता था। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए कि किस प्रकार मौन का अभ्यास होना चाहिए। और इतना सहजता से हम लोग मौन कर पाए, ये बहुत आश्चर्य की बात थी। उल्टा इतना अच्छे से मौन हो रहा था, अभी लगता था अरे हाय राम, वापस से दुनिया में जाना है। बोलने की इच्छा खत्म हो गई थी, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना सहज भाव भी आ सकता है, क्योंकि स्वामी पहले भी कहते सहज भाव आना चाहिए। हम समझ नहीं पाते ये सहज भाव क्या है। सहज भाव वो है कि जग के और देख के भी
कोई भी विचार ना आए कि ये क्यों हो रहा है, वो ऐसे क्यों कर रहा है। क्या हम उस सहजता से जैसे वो घूमते हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन उन 4 दिनों में उन्होंने थोड़ी झलक दिखाई कि सहज भाव क्या होता है, साक्षी भाव क्या होता है। नहीं तो ये सारे शब्द ही है। तो इस प्रकार जब आप गुरु सानिध्य में कुछ करते हैं तो वो आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। इस प्रकार से हम शांति से कितना तो ध्यान कर रहे थे। वहाँ पे एक बाबा जी की गुफा उन्होंने बांधी है, वहाँ पे जाके भी हम पहाड़ों में उन्हें खोद के गुफा जैसा निर्माण किया है। स्वामी जी ने हमें हवन भी सिखाया है, कितना कुछ दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने ये दोनों जो शिविर है वो बहुत बहुत आनंद के साथ अभी तो ऐसे हो रहा है कि लोग राह देखते कि कब स्वामी जी आ रहे हैं और हम वापस से शिविर के लिए जाएं। ये है क्रिया रिट्रीट, क्योंकि जैसे स्वामी जी हमें भर भर के दे रहे हैं वैसे बाबा जी महाराज भी भर भर के दे रहे हैं। तो इसमें हम अगेन मैंने कहा ना, ये 2 पाथ अलग दिखते हैं, वो है यहाँ पे भी प्रकृति से जुड़ने के ही उपाय बताए हैं। क्योंकि बिना प्रकृति से जुड़े न आपको स्वास्थ्य लाभ होगा, न ही आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। जब हम इस साक्षात ईश्वर को हम आदर के साथ और प्रेम के साथ नहीं जुड़ सकते, वो निराकार ईश्वर का हम क्या आभास करेंगे। तो इसके लिए इस रिट्रीट में भी प्रकृति से जुड़ के अलग अलग क्रिया प्राणायाम या ब्रेथ आपको सिखाए जाएंगे, और जिसका इफ़ेक्ट अगेन मौन की तरफ या आपको गाढ़े ध्यान की तरफ ले जाने के लिए आपको होगा। ये भी 3 या 4 दिन का एक अनुभव है जो आप ज़रूर एंजॉय करेंगे। इस प्रकार से हमने बिल्कुल, जब आप उगते हुए, ये सूर्योपासना भी स्वामी जी दी है, और इतना आनंद मिलता है जब आप इतने कहते हैं ना प्योर एनवायरनमेंट में आप सूर्य भगवान को, हम यहाँ पे शहर में तो सूर्य भगवान के दर्शन होते होते आधा दिन निकल जाता है। जब आप उनके बाल रूप को इस प्रकार देखते हैं, आप स्तिमित हो जाते हो। और उसके साथ साथ स्वामी जी के शुद्ध वैदिक संस्कृत के मंत्र जब आप सुनते हो, आपका जैसे कण कण बता नहीं सकते, वो अनुभव करने की चीज़ है। तो इस प्रकार से कुछ नए प्रोग्राम है। जैसे मैंने कहा, स्वास्थ्य बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑरा क्या है? ऑरा है ना हमारा पंचकोशात्मक शरीर। जैसे मैंने कहा, हम भूल जाते हैं कि हमारे बाकी के 4 कोश है, इसी शरीर पे ध्यान आ जाता है। तो बाकी के 4 कोशों की देखभाल कैसे करनी है, उसे सुरक्षित कैसे रखना है, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, वो आप ऑरा शील्डिंग में जानते हैं। और उसके असंख्य उपाय इसमें आपको दिए जाते हैं। दूसरा है मुद्रा और हीलिंग। हमारे ऋषियों के, हमारी संस्कृति की कितनी तारीफ करें, कितना अभिमान माने। हजारों मुद्राओं, कितना साइंस है ये। इतना सा 2 उंगली चिपक के क्या होगा, ऐसा हम लोग सोचते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने 5 तत्व की 5 उंगलियां है, उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से आप कोई भी रोग नष्ट कर सकते हो। इतना महान ज्ञान हमारे तक पहुंचता ही नहीं है, और पहुंच के भी हमारे अंदर इतना मॉडर्न मेडिसिन भर दिया है कि हमारे उसका ऊपर विश्वास नहीं है, और विश्वास नहीं है इसलिए हम उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो इस मुद्रा फॉर हीलिंग में आप अलग अलग मुद्रा कैसे की जाती है, हम बेसिक से शुरू करते हैं। और नॉर्मली हमें जो भी तकलीफ़ होती है, बीपी है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस है, ऐसे नॉर्मल जो हमारे तकलीफ़ें होती है, उसका निवारण आप मुद्रा के साथ कैसे कर सकते हैं। इसी मुद्रा को स्वामी जी ने और मंत्र जाप से उसको और पावरफुल बना दिया है। जितना आप सीखना चाहते हो उतना सब तदेकम में अवेलेबल है। आपको जो अच्छा लगता है आप वहाँ से शुरू कर सकते हो। डिवाइन क्रिया ब्रेथ मेडिटेशन, बहुत लोगों को ऐसे रहता है कि मैं ध्यान नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होता है। यहाँ पे इतना सहज सिंपल ध्यान लगाने की विधि आपको सिखाई जाती है। बहुत ही सिंपल प्राणायाम भी स्वामी जी बोलते हैं हमारा शरीर अभी प्राणायाम के लिए स्वस्थ नहीं है। जिस प्रकार से प्राणायाम सिखाए जाते हैं बहुत कुंभक, बहुत जोर से, उससे लाभ कम हानि ज़्यादा होगी। इसीलिए यहाँ पे जो प्राणायाम सिखाए जाते हैं वो बहुत सहज है, सिर्फ आपके श्वास से जुड़ने के। उस श्वास से फिर आप अपने आप ध्यान में कैसे जा सकते हैं। उसके साथ बेसिक कुछ मुद्राएं भी, जैसे खेचरी मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण है। ये खेचरी भी पूर्ण खेचरी नहीं है, अर्ध खेचरी जो हम आराम से कर सकते हैं। और
सिंपल सिंपल ध्यान की तकनीकें जैसे त्राटक है, गाइडेड मेडिटेशन है, पंचभूत मेडिटेशन है, अगेन यहाँ पे प्रकृति से जुड़ने का एक प्रयास है। तो उस प्रकार से 4 सेशन का ये ऑनलाइन है। इसमें से ये तीनों आप आपके घर में बैठ के भी कर सकते हो। आजकल लोगों को ट्रैवल का तकलीफ है, हम भी मॉडर्न बन गए कि अभी ठीक है हम ही आपको सिखाएंगे ऑनलाइन। तो इस प्रकार से आप इन सभी चीज़ों को सीख के एक स्टेप जो गुरु के लिए योग्य बनाती वो है स्वस्थ शरीर। जितना आप आपको स्वस्थ बना के गुरु के पास जाएंगे वो उतना आपको जल्दी से आगे लेके जा सकता है, क्योंकि जो भी कोई डिसीज़ है उससे हमारी क्षमता कम हो जाती है शरीर की। अभी सोशल मीडिया प्रेजेंस और नए जो ऐप है उनको कैसे हम प्रयोग करते हैं, तो अगेन मैं किसी भी जीवन में होने वाले घटना को मैं कोइंसिडेंस योगायोग नहीं मानती। कोई तो है ऊपर जो ये रचना करता है और वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है। जैसे हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि पॉडकास्ट इतना आजकल बहुत ना महत्वपूर्ण हो गया है। सामने से हमारे टीचर्स को पॉडकास्ट के ऑफर आए और उसका हमने जितना गुरु आज्ञा से हम कर पाए। तो वो पहली क्लिप है नमिता की क्लिप, अभी नहीं बता सकते, ओके बाद में, ठीक है। तो नमिता को 2 पॉडकास्ट के लिए उनको आमंत्रित किया गया था, जहाँ पे उन्होंने गुरुजनों का ज्ञान सिंपल भाषा में देने की चेष्टा की है। अब इसके लिए मैं साकेत को आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल है। मुझे आध्यात्म के लिए दे दो, मैं थोड़ा बहुत गुरुओं का सुन के आपको सुना सकती हूँ, लेकिन टेक्निकल नहीं है। तो हियर साकेत, हु इज़ द मेन इन ऊसास ना। ऊसास आप नाम को थोड़ा सा मैं बताती हूँ। ये नाम ऊषाज से लिया गया। उषा यानी राइजिंग सन की जो एक ऊर्जा है, वो जो एक उनका ना तप का रूप है, उसको उषा बोलते हैं। वहाँ से गुरुजी ने इसको ऊसास नाम दिया है, ताकि सभी के जीवन में ये प्रकाश फैले। उसका ये पहला फल सबके सामने प्रस्तुत है। साकेत आप आइए। Thank you. Pranam Swamiji. Good evening, everyone. I'm Saket, and today I want to share some exciting news with you guys. So we have been working on this app called Nad. All of us chant, right? But when we are chanting, what we also have to do is focus on the pronunciations. We have to focus on the counting, right? Make sure we do the right amount of counting. So the idea behind this app is that, let us worry about all of this. You focus only on the chanting, nothing else. So this app is currently under development, and we are looking at releasing the beta version in October. What this app will allow you to do is it will basically ensure that you can add customized counts. You can track your pronunciations. If the pronunciation is wrong, right, it's not going to increment the counter. So it will essentially mean that by the time you finish your counting, you will actually have done the right number of, right amount of chanting with the right pronunciations. Once you finish chanting, it will notify you. You can also save chants, right? So for example, if you're doing 1,000 repetitions over 5 days, it will allow you to continue over multiple days. So we are looking at a lot of features. Currently, it will come with some pre-trained chants, but in the later versions, we'll also have allow you to, we'll give this facility that will allow you to upload your own chants. And a lot of exciting features in the queue. So thank you, thanks, and thank you, Swamiji. Thank you. अब आज के दिन का जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रेम से भरा, भक्ति से भरा जो अभी का क्षण है, वो है गुरु पूजा का। और उसके लिए मैं हमारे प्रिय आदरणीय स्वामी जी को यहाँ पे स्टेज पे स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी।